اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہشیں خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہشیں خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی، رزق میں وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائیں گی، حاضری حضرت عباس دلوایا کرو، حاضری حضرت عباس دلوایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، حبس کے ماحول میں جب بھی گھٹن محسوس ہو، حبس کے ماحول میں جب گھٹن محسوس ہو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، خوشبوئے ذکر علی سے گھر کو مہکایا کرو، جب کبھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اب میری گزارش زیاد زیدی صاحب سے ہے کہ وہ پیش خوانی کریں۔ جناب زیاد زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پیشخوانی کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے والد محترم بدر جونپور صاحب کے کلام پیش کریں۔ 4 مصرے۔ میں چھلکتی رہے جام چلتا رہے، میں چھلکتی رہے جام چلتا رہے، لاکھ پہلو زمانہ بدلتا رہے، میں چھلکتی رہے جام چلتا رہے، لاکھ پہلو زمانہ بدلتا رہے، تیرے محبوب کا ہے لگایا ہوا، اے خدا یہ شجر خوب پھلتا رہے، تیرے محبوب کا ہے لگایا ہوا،
اے خدا یہ شجر خوب پھلتا رہے۔ ایک قطع اور، جو سطح پر نظریں رہتی ہیں وہ گوہر مقصد ہوتی ہیں، جو سطح پر نظریں رہتی ہیں وہ گوہر مقصد کھوتی ہیں، تصویر محمد تو دیکھو یہ نظریں نچھاور ہوتی ہیں، تصویر محمد تو دیکھو یہ نظریں نچھاور ہوتی ہیں، رحمان کا سایہ ہے سر پر قرآن کی دولت سینے میں، رحمان کا سایہ ہے سر پر قرآن کی دولت سینے میں، ہے دونوں جانب دو دریا آغوش میں مونگے موتی ہیں، ہے دونوں جانب دو دریا آغوش میں مونگے موتی ہیں۔ حسین تجھ سے نشان رسول ہے گویا، حسین تجھ سے نشان رسول ہے گویا، کہ تیری آن سے شان رسول ہے گویا، حسین تجھ سے نشان رسول ہے گویا، کہ تیری آن سے شان رسول ہے گویا، وہی خطاب وہی لہجہ اور وہی تقریر، وہی خطاب وہی لہجہ اور وہی تقریر، تیرے دہن میں زبان رسول ہے گویا، وہی خطاب وہی لہجہ اور وہی تقریر، تیرے دہن میں زبان رسول ہے گویا۔ ایک سلام ہے غالب کے مصروں کے اوپر تضمین، ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرا مصرع غالب کا ہے، پہلا مصرع ابا جان کا ہے۔ زبانیں قطع ہوتی ہیں دہن کی آزمائش ہے، زبانیں قطع ہوتی ہیں دہن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوایان چمن کی آزمائش ہے، زبانیں قطع ہوتی ہیں دہن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوایان چمن کی آزمائش ہے، سبق لے می سموہانی سے اے مداح مدحت کا، چمن سبق لے می سموہانی سے اے مداح مدحت کا، حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، سبق لے می سموہانی سے اے مداح مدحت کا، حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، فضائل وضع ہوتے ہیں ادھر دولت کی لالچ میں، فضائل وضع ہوتے ہیں ادھر دولت کی لالچ میں، جہاں ہیں ہم وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے، فضائل وضع ہوتے ہیں ادھر دولت کی لالچ میں، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے، اور اٹھا کر اپنی بیعت اور خبر دے کر شہادت کی، اٹھا کر اپنی بیعت اور خبر دے کر شہادت کی، شکیب و صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے، شکیب و صبر اہل انجمن کی آزمائش ہے، ابھی تو بستر بیمار ہی چھینا ہے ظالم نے، ابھی تو بستر بیمار ہی چھینا ہے ظالم نے، ہنوز اس خستہ کے نیرو تن کی آزمائش ہے، ہنوز اس خستہ کے نیرو تن کی آزمائش ہے، اور سنبھالے دل کو ہے زینب کے دربار یزیدی میں، سنبھالے دل کو ہے زینب کے دربار یزیدی میں، ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے، سنبھالے دل کو ہے زینب کے دربار یزیدی میں، ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے، ولی عہدی عطا ہوتی ہے بیعت کی طلب کیسی، ولی عہدی عطا ہوتی ہے بیعت کی طلب کیسی، نئے فتنوں میں اب چرخ کہن کی آزمائش ہے، ولی عہدی عطا ہوتی ہے بیعت کی طلب کیسی، نئے فتنوں میں اب چرخ کہن کی آزمائش ہے، اور کرے ہے بدر تزمی گفت غالب پر یہ سن کر،
کرے ہے بدر تزمی گفتۂ غالب یہ سن کر حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ آپ مومنین کو اطلاع عرض ہے کہ اس مجلس کا ٹیلی کاسٹ یوٹیوب کے ذریعے مولانا موصوف فیض عباس صاحب کے چینل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو زوم میں مجلس سننے میں پریشانی ہو رہی ہو تو وہ یوٹیوب پہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتا ہے۔ اب میری حد ادب گزارش ہے مولانا فیض عباس صاحب مشہدی سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا فیض عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وقلبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات بھیجنے پر محمد وعلیہ۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین اور شریکان مجلس اور مجلس کا اہتمام کرنے والے اور عشرے کو گزار کرنے والے تمام مومنین کچھ گاؤں جونپور کی طرف سے اور اس وقت مجلس کو سماعت کر رہے اور نظارت کر رہے ہوئے تمام مومنین کی طرف سے سب سے پہلے بارگاہ امام زمان حضرت ولی اللہ ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں شہدائے کربلا کی شہادت کے عنوان سے
माह मुहर्रम सन 1442 हिजरी का पुरसा पेश करता हूँ। सानियन मैं अपनी तरफ से आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में सरकार सैयदुश्शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके असहाब बावफ़ा और उनके अंसार व अक़रबा की शहादत के सिलसिले से मुनअक़िद इस अशरे ऊला की पहली मजलिस में पुरसा पेश करता हूँ। मिलजुल के सलावत भेजने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरी हम आहंगी और अशरे के बरगुज़ार करने वाले अफराद की तरफ से इस अशरे मुहर्रम का जो उन्वान सुखन है वह है इस्लामी माशरे में आने वाली रुकावटें और उनका हल। गोया अगर हम ये चाहें कि हमारा माशरा इस्लामी हो जाए, हमारा कल्चर इस्लामी हो जाए, हमारा माहौल इस्लामी हो जाए और हम ख़ुद मुसलमान बन के ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि दूसरे अफराद के जो इस्लाम से रंजीदा हैं, जो इस्लाम से मुतनफ़िर हैं, वो हमारे किरदार और हमारी रफ़्तार को देखकर, हमारी गुफ्तार को देखकर दीन इस्लाम की हक़्क़ानियत को भी समझें और इस्लाम के पैगामात को समझते हुए अपने आप को वहदानियत के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह तक पहुँचा दें। लिहाजा इस्लामी माशरा जब हम बनाना चाहते हैं और जब हम ये तय करते हैं कि अपने माहौल को इस्लामी बना दें, तो फिर वहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ ज़हमतें आती हैं। उन परेशानियों का भी तज़किरा इंशाअल्लाह इस अशरे मुहर्रम में किया जाएगा और उनसे बचने के तरीक़े क्या हैं, उन मवाने को हटाने के तरीक़े क्या हैं और उन रुकावटों को अपने आप से अलग करने के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, इस उन्वान से इस अशरे को इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूँगा। कम तालिब इल्म हूँ, बहुत ही कोताह मुद्दत मेरी तालीम रही है, अगरचे दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 40 बरस तक किरदार का कलमा पढ़वाया और अपनी सीरत के वो तमाम गोशे ज़ाहिर किए कि जिनके बाद कुफ़ार कुरैश ये कहते हुए नज़र आए कि हम आपको नबी माने या ना माने, हम आपको रसूल जाने या ना जाने, मगर इतना तय है कि आपसे बेहतर कोई इंसान इस दुनिया में वजूद नहीं रखता। इसलिए कि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको गलत बयानी करते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी ख़यानत करते हुए नहीं देखा। पैगम्बर आज़म ने 40 साल तक, 40 बरस तक जब ऐसी मुखलसाना ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद लोगों को वहदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह की तौहीद की तरफ निदा दी। मुझ जैसा एक तालिब इल्म जो मुश्किल से 15-20 बरस तक तालीम हासिल करता है और उसके बाद मेंबर पे आके तबलीग रसालत और तबलीग तौहीद की दावत देता है, तो यकीनन अगर इस ज़बान में असर ना हो और कोई आवाज़ पे लब्बैक ना कहे, तो ये कोताही लब्बैक ना कहने वालों की ना होकर ख़ुद मेरी ही है। लिहाजा जो भी मजालिस पढ़ता हूँ, ये ख़याल करता हूँ कि इन मजालिस के अंदर अगर शिरकत करने वालों की ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली आ जाए और आमाल व अफ़आल में एक तब्दीली देखने के बाद इंसान रुश्द व कमाल की तरफ बढ़ जाए, और अगर सुनने वाला न भी बढ़े, ख़ुद खिताब करने वाला यानी हक़ीर यानी मैं और मेरी रूह के अंदर ज़रा सा भी फ़र्क पड़ जाए और इंसानियत की हदों से आगे बढ़कर रुश्द व कमाल तक पहुँचने के बाद करबला की खाक को अपने माथे से लगाकर उबूदियत के कुछ तरीक़े अगर अज़हान के अंदर समा जाएँ, तो फिर अशरे मुहर्रम की कामयाबी के लिए भी यही काफ़ी होगा और मजालिस बर्पा करने वालों के तमाम ज़हमात भी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं इस्लामी माशरे की, इस्लामी समाज की, तो हमें मालूम है कि माशरा और समाज इंसानों से बनाया जाता है। जिसके माशरे की बात होती है, समाज उन्हीं अफराद के मजमूए को कहा जाता है। लिहाजा जब हम ये चाहें कि हमारा माशरा इस्लामी हो, हमारा समाज मुसलमान हो और इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए हम सिल्म और अमन की बातें करते रहें, तो फिर ज़रूरी होगा कि इस माशरे को बनाने की इब्तिदा सबसे पहले अपने वजूद से हो, अपने नफ्स से हो, कि हम पहले अपने नफ्स को मुसलमान करें, अपने वजूद को मुसलमान बनाएं और अपने आप ख़ुद मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारें कि जो क़ुरआनी ज़िंदगी होती है, जो नबवी ज़िंदगी होती है, जो मासूम की ज़िंदगी होती है कि पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस्लाम को लेकर आए थे, वो कोई नया दीन नहीं था, वो कोई नया मज़हब न था, बल्कि हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक जो भी नबी आया उसने इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुँचाया और दीन इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दी। लिहाजा हज़रत इब्राहीम ने ख़ुद दुआ की
کہ میرے اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری ذریت مسلمان رہے، اور قرآن کریم نے یہ حکم بھی دیا اور یہ فرمان سنایا کہ ابراہیم ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور مسلم رکھا ہے۔ لہٰذا خود مسلمان ہونا ایک کمال ہے کہ جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کو یہ وجود بخشا ہے، اگر اللہ نے اس کو یہ حیات بخشی ہے، تو اللہ کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا، مگر شکر کے طور پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ جو ایک احسان ماننے والے فرد کو کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں مسلمان بنا کے بھیجا، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی تولد ہوتا ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کی فطرت مسلمان ہوتی ہے، اس کا آغاز مسلمان ہوتا ہے، اس کی ابتدا اسلام سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اب چونکہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے، لہٰذا اس نعمت کا پہلا شکر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی اس دنیا سے جائیں۔ لہٰذا قرآن کریم نے آواز دی کہ دیکھو تم ہرگز اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ موت اور حیات کا پورا اختیار خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کو روک سکے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نحن نقدر بینکم الموت، خداوند عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے درمیان موت کو مقدر بنا دیا ہے۔ تو جب یہ موت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے، تو ہم موت کو تو نہیں ٹال سکتے۔ پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی اللہ ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ جس پاک سرشت کے ساتھ، جس پاک فطرت کے ساتھ ہم نے تمہیں دنیا میں اتارا تھا، جس فطرت اسلامی پہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی فطرت اسلامی کو لے کر ہمارے پاس آنا، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو تم وہ دین پیش کرنا جو دین دے کے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو اسلام ہے۔ لہٰذا جب ہم چاہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو جائے، ہمارا سماج مسلمان ہو جائے، تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں۔ قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس کو خطاب کیا ہے اور سرنامہ سخن قرار دیا ہے، انشاءاللہ ان 10 مجالس کے اندر اسی آیت کو میں روزانہ تکرار بھی کروں گا اور دہراتا بھی رہوں گا۔ آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک مثال بیان کی ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی؟ کیا مثال؟ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے اس کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے، اس کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے۔ اور جانتے ہو کہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ یہ ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی اصل، اس کی جڑ ثابت ہے، وہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ اس کے اوپر زمانے کے حالات اگر عارض ہو جائیں تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑتی نہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی۔ خداوند عالم نے اس آیت کے اندر مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے، اور شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کے روٹ مضبوط ہوتے ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور اگر جس کی جڑیں مضبوط ہوں تو پھر زمانے کی ہوائیں، سرد ہوائیں ہوں یا گرم ہوائیں ہوں، یہ اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑنے دیتی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ہی کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی بات کی، اس کی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا، اور فوراً یہ بتایا کہ جس طرح سے کلمہ طیبہ ہے، جس طرح سے شجرہ طیبہ ہے، اسی طرح سے شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ لہٰذا انہی آیت میں خداوند عالم آگے جا کے کہتا ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ مثال شجرہ طیبہ کی بیان کی ہے، شجرہ خبیثہ کو بھی ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس کی بھی خرابیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ بنا سکیں، اپنے آپ کو شجرہ طیبہ سے مخصوص کر لیں، اور اپنے آپ کو ان کے در پہ پہنچا دیں جن کے لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہیں کلمہ طیبہ، وہی تو ہیں شجرہ طیبہ، کہ جن کی اصل بھی ثابت ہے اور جن کی فروعات، جن کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ لہٰذا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے چلے جائیں، روز اول سے لے کر حضرت پیغمبر تک، اور حضرت پیغمبر سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، دونوں طرح کی زندگی آپ کے سامنے ہے، دونوں طرح کے کلمات آپ کو دکھائی دیں گے، دونوں طرح کے شجرے آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک طرف شجرہ طیبہ کے وہ رساں ہیں اور ایک طرف شجرہ خبیثہ کے وہ رساں ہیں۔ ہم نے زندگی کی ابتدا حضرت آدم سے دیکھی تو یہ دیکھا کہ جب حضرت آدم دنیا میں آئے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا شروع کیا،
اور अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो खुद हज़रत आदम की सुल्ब में पाए जाने वाले दो फर्द कि जिनमें एक का नाम हाबिल और एक का नाम काबिल है। एक वो है जो शजरे तैयबा का वारिस है, जो कलमा तैयबा का दिलदादा है, और दूसरी तरफ वो है जो शजरे खबीसा का वारिस है कि जो कातिल भी बन जाता है, हासिद भी बन जाता है, और एक मासूम नबी के कत्ल का जो गुनाह बर्दाश्त करता है वो क़यामत तक उसकी सज़ा के लिए काफ़ी होता है। लिहाजा हज़रत आदम कि जिस दिन दुनिया इब्तिदा हो रही है, इस दुनिया की शुरुआत हो रही है, जिन हालात में अभी दुनिया को बसना है, अभी तो हज़रत आदम की औलादें पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगी, अल्लाह का कलमा आश्कार किया जाएगा, हज़रत आदम की नबूवत का कलमा पढ़ा जाएगा, मगर इख्तिलाफ यहीं से हो जाता है क्योंकि एक तरफ लिल्लाही ताकत है, इलाही ताकत है जो शजरे तैयबा को बरकरार रखना चाहती है, और उसके मुकाबले में शैतानी ताकतें हैं जो शजरे खबीसा को बरकरार रखना चाहती हैं। मगर खुदावंद आलम का हुक्म यह है कि शजरे तैयबा की तो असल साबित होती है, लिहाजा इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई डिगा नहीं सकता, इसको इसके रास्ते से कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जो शजरे खबीसा होगा, चूँकि उसके अंदर शैतानी ताकतें हैं, उसके अंदर कोई असल ना होगी, बल्कि वो ज़मीन के ऊपर ऐसा दरख्त है कि जो ज़रा सी हवाएं और फ़िज़ाएं अगर बदलें तो अपनी जगह को छोड़ देता है। लिहाजा हम देखते चले आते हैं कि ये दोनों तरह के शजरे हमको दिखाई देते हैं, दोनों तरह के कलमे हमको दिखाई देते हैं कि जिनके होने से ये समाज तश्कील पाता है। एक तरफ कलमे तैयबा, एक तरफ शजरे तैयबा कि जो इस्लामी समाज को पैदा करने के लिए और बनाने के लिए रोज़ बरोज़ मेहनत करता चला जा रहा है और अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि हमारी ज़िंदगी के ज़रिए ये समाज इस्लामी हो जाए। और दूसरी तरफ शजरे खबीसा वाले हैं कि जो ये चाहते हैं, जिनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इस दुनिया के अंदर शजरे खबीसा को आश्कार किया जाए। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम ने मुतअद्दिद मरतबा शजरे खबीसा और शजरे तैयबा को बयान करने के लिए और तैयब और खबीस के फ़र्क को ज़ाहिर करते हुए मुतअद्दिद आयात के अंदर खुदावंद आलम ने मुतअद्दिद ऐलानात किए। लिहाजा आवाज़ आई कुल ला यस्तविल खबीस व तैयब, ए पैगम्बर आप इनसे कहिए कि कभी भी खबीस और तैयब बराबर नहीं हो सकते। वलाउ आजबक कसरतुल खबीस, हाँ ये मुमकिन है कि आपको इन खबीसों की तादाद देखने के बाद थोड़ा ताज्जुब हो जाए कि वो अल्लाह जो हर शय पर कादिर है, आखिर उसका शजरे तैयबा, उसका कलमे तैयबा कम अफराद पे क्यों मुश्तमिल है, और ये जो शजरे खबीसा है इसकी तादाद बढ़ती क्यों चली जा रही है। आज हम अपने समाज में जब निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं कि नेकी का साथ देने वाले अफराद बहुत कम हैं, बुराई की तरफ जाने वाले अफराद बहुत हैं। अल्लाह की इताअत करने वाले अफराद आपको उंगलियों पर गिनने को मिल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मासियत करने वाले अफराद आपको लाताद दिखाई देंगे, लातादाद दिखाई देंगे। आपको मस्जिदों के अंदर जो जमाअत की किल्लत है उसका भी एहसास होगा और सिनेमा हॉल में बढ़ती हुई कसरत का भी एहसास होगा। अल्लाह की तरफ बुलाने वाले अफराद की तरफ जाने वालों की थोड़ी सी तादाद के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ताज्जुब होता होगा, और बुराई की तरफ खींचने वाले अफराद की तरफ जाती हुई कसरत से भी हमको यकीनन ताज्जुब होता है, और होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये कहा वलौ आजबका, मुमकिन है कि ये तुम्हें शजरे खबीसा की तरफ जाने वाले अफराद, खबासत की तरफ जाने वाले अफराद की तादाद देकर तुम्हें ताज्जुब हो जाए, मगर तुम घबराना नहीं, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। जो खबीस है वो खबीस रहेगा, जो तैयब है वो तैयब रहेगा। खबीस 9 लाख का लश्कर लेके भी करबला में आ जाए तो फिर वो खबीस ही कहलाएगा, तैयब 72 अफराद को लेके भी करबला में आ जाए तो वो तैयब कहलाएगा। खबीस अगर इजमा के नाम पे पैगंबर के जानशीन से उनका हक छीन ले तब भी वो खबीस रहेगा, और तैयब चंद अफराद के ऊपर मुश्तमिल इन तैयब घराने के अफराद के जो अली को पैगंबर आज़म का जानशीन मानेंगे, वो चाहे उनकी तादाद कम ही हो मगर वो वाकई शजरे तैयबा के मालिक कहलाएंगे। और हमने ये देखा है कि ये तो न सिर्फ ये हज़रत आदम बल्कि पैगंबर के ज़माने में भी हमने देखा, जंग ओहद का मौका है, पैगंबर आज़म ने ये चाहा कि अब जो जंग होने वाली है, लिहाजा 1000 की जो फौज है पैगंबर आज़म की, पैगंबर ने 1000 की फौज में 950 अफराद को बांटा है 3 हिस्सों में। पुराने ज़माने में जो जंगें हुआ करती थी उनमें एक मैमना हुआ करता था, एक मैसरा होता था और एक कल्ब लश्कर हुआ करता था। मैमना वो होता था जो कमांडर इन चीफ के दाईं तरफ का हिस्सा था, और मैसरा वो होता था जो बाईं तरफ हिस्सा होता था, और कल्ब लश्कर वो कहलाता था जो कमांडर इन चीफ के पीछे अफराद रहते थे। पैगंबर आज़म को जंग लड़नी है,
पैगंबर आज़म के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है। इस्लाम में पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इब्तिदा नहीं की जंग की, चाहे वो जंग बद्र हो, चाहे वो जंग उहद हो, चाहे वो जंग खंदक हो। तीनों जंगे वो हैं कि जो दूसरे अफराद की तरफ से, कुफ़ार की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से पैगंबर के ऊपर आयत की गई हैं। पैगंबर ने जंग इब्तिदाई नहीं की है। सिर्फ एक जंग है, जंग खैबर, कि जो पैगंबर ने मदीने से बाहर जाके लड़ी है। वो भी मसलहत के तहत था कि अगर ना करते तो फिर शायद इस्लाम को ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन इसके पहले की जो तीनों जंगें हैं, अगर आप देखें कि इनकी इब्तिदा पैगंबर ने नहीं की है। दलील क्या है कि तीनों जंगें इस वक्त जो हजरात मजलिस समात फरमा रहे हैं, इसमें बहुत से अफराद ऐसे हैं जो मक्के और मदीने में रह रहे हैं और इस वक्त भी वो रहते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि जो तीनों जंगें हैं, चाहे जंग बद्र हो, चाहे जंग खंदक हो और चाहे जंग उहद हो, ये मदीने के अतराफ में जंगें हुई हैं, जो इस बात को बताती हैं कि पैगंबर आज़म मदीने से मक्के पे हमला करने के लिए नहीं गए कि कोई ये कहे कि इस्लाम जंग का मजहब है, इस्लाम जदाल का मजहब है, बल्कि ये सारी जंगें मदीने के अतराफ में होती हैं। और तारीख़ ये बताती है कि मक्के के कुफ़ार और मुशरिकीन हैं जो मक्के से चलकर मदीने पे आके हमला करते हैं, और पैगंबर मजबूर होते हैं कि अपने समाज की हिफाजत करने के लिए, अपनी नामूस को बचाने के लिए, अपने महारिम की हिफाजत के लिए मदीने को छोड़ते हैं, शहर से बाहर आते हैं और जंग करते हैं। जंग उहद का मौका 1000 जंगजू तैयार हैं पैगंबर की तरफ से जंग करने के लिए। पैगंबर ने 950 अफराद को बांटा है, बाज को मैमने में भेजा, बाज को मैसरे में भेजा, बाज को कल्ब लश्कर में रखा, मगर 50 अफराद वो हैं कि पैगंबर ने ना इनको मैमने में भेजा है, ना मैसरे में भेजा है, ना कल्ब लश्कर में भेजा है। ये परेशान नबी खुदा, क्या हम जंग के लायक नहीं है? आप हमको जंग में क्यों नहीं भेजते? आपने हमको ना मैमने में भेजा है, ना मैसरे में। पैगंबर ने कहा नहीं, आज तुम्हारा काम जंग नहीं है, बल्कि तुम्हारी तकलीफ दूसरी है, तुम्हारा वजीफा दूसरा है, तुम्हारी मसूलियत दूसरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरी है। नबी खुदा बताइए हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखो, ये जंग करने वाले जंग करते रहेंगे, ये क़िताल करने वाले क़िताल करते रहेंगे। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ। मुसलमान अगर जंग जीतते हैं तो जीतते रहें, अगर मुसलमान शिकस्त खाते हैं तो खा जाएं, मगर तुम उस वक्त उस ओहद की चोटी के ऊपर से न उतरोगे उस वक्त तक कि जब तक मैं तुम्हारे पास कोई पैक न भेजूं, कोई मैसेज न भेजूं, कोई कासिद न भेजूं कि पैगंबर ने तुम्हें बुलाया है। गोया जब तक तुमको बुलाया न जाए, तुम्हें इसी चोटी के ऊपर, इसी पहाड़ के ऊपर जमे रहना है और पैगंबर की इताअत करनी है। जंग शुरू होती है हमेशा की तरह से कि जैसे जंग बद्र में मुसलमान फतहयाब हुए, उसी तरह से ये जंग उहद में भी मुसलमान पूरी तरह से फतहयाब हो चुके हैं। मुसलमानों ने कुफार कुरैश को शिकस्त दे दी है। अल्लाह की तरफ से आई हुई इमदाद और मौलाए कायनात के बाजू के जौहर से मुसलमान दोबारा आज फतहयाब हुए हैं। मुबारकबाद दी जाने लगी, मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमें फतह नसीब हुई है। और उधर कुफार कुरैश हैं कि जो मैदान से लड़खड़ाते हुए कदम से वापस जा रहे हैं, इसलिए कि जो शजरे तैयबा होती है उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं। मौलाए कायनात कान्नहुम बुनियानुम मरसूस का कलमा हासिल किए हुए फर्द का नाम है, लिहाजा साबित कदम हैं, शिकस्त दे चुके हैं उस शजरा खबीसा को कि जिसकी असल साबित नहीं होती, बल्कि जमीन के ऊपर जिनकी जड़ें होती हैं और असल होती है। वापस जा रहे हैं, अचानक वो 50 अफराद कि जो चोटी पर बैठे हुए हैं आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि देखो मुसलमान तो फतहयाब हो गए हैं, मुशरिक वापस जा रहे हैं, काफिर वापस जा रहे हैं, ये जंग हार चुके हैं और अब मुसलमान चूंकि फतहयाब हो चुके हैं, लिहाजा अब ये नीचे जाकर माल गनीमत को तकसीम करेंगे। अभी बातें ही हो रही थी कि अचानक किसी ने कहा कि अब तो सारा काम खत्म हो चुका, लिहाजा आओ हम भी अपने हिस्से को और अपनी गनीमत को हासिल कर लें। यहाँ से उठें, मैदान जंग में पहुंचें, गनीमत में जो हमारा हिस्सा हो उसको हम हासिल कर लें। कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने में देर हो और मुसलमान सारा माल गनीमत तकसीम कर लें और हम खाली हाथ रह जाएं। ये कहते हुए चंद अफराद पहाड़ से नीचे आने लगे तो कुछ अफराद ने रोकने की कोशिश की और ये कहा कि कहाँ जा रहे हो? पैगंबर का हुक्म ये था कि जब तक तुमको आवाज न दी जाए, जब तक तुमको हुक्म न दिया जाए, जब तक तुमको बुलाया ना जाए, तुमको आने की इजाजत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? 25 अफराद हैं जिनका जवाब यह है कि तुमको इस पहाड़ पे बैठना है तो बैठे रहो, तुमको माल गनीमत की अगर जरूरत नहीं है तो ना हो, हमें माल गनीमत भी चाहिए है, हमको माल मता भी चाहिए है। मुसलमान जंग जीत चुके हैं, अब हमारे बैठने से क्या फायदा, हम नीचे जाएंगे माल को हासिल करेंगे। 25 अफराद पहाड़ से नीचे उतरते हैं, मैदान जंग में आते हैं, माल गनीमत को हासिल करना शुरू करते हैं। और उधर जो पहाड़ पे बैठे हुए 25 अफराद हैं उनमें भी एक निज़ा होता है, एक बहस होती है, एक जदाल होता है कि जब वो भी चले गए तो अब हमें भी जाना चाहिए। लिहाजा 10 अफराद और उतरे, 5 अफराद और उतरे, 5 अफराद और उतरे
और तारीख ये बताती है कि अब उस पहाड़ के ऊपर सिर्फ 2 फर्द हैं, 48 अफराद पहाड़ से नीचे आ चुके हैं माल गनीमत के लिए। माल वलऊ कसरत बवलऊ, हो सकता है कि तुम्हें इस खबीस की कसरत मुताज्जिब कर दे कि जो इताअत करने वाले नहीं हैं, जो कलमे तैयबा की इत्तिबा करने वाले नहीं हैं, इनकी कसरत हो सकता है कि हमेशा ज्यादा रही हो। सारे अफराद नीचे और 2 अफराद पहाड़ के ऊपर हैं। अब इन 2 अफराद में भी निज़ा होने लगा कि क्या हमको भी नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और बाद रवायतें बताती हैं कि उन 2 में भी एक नीचे और एक ऊपर रह जाता है। और बाज़ रवायतें बताती हैं कि जो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं, 48 अफराद नीचे आके माल गनीमत को हासिल कर रहे हैं। उधर वो कुफ्फार और मुशरिक कि जिन्होंने ये देखा कि मुसलमान फतहयाबी के बाद, जीतने के बाद, फतह के बाद माल गनीमत को हासिल करने में मशगूल हो गए हैं, और इस वक्त पहाड़ पर भी कोई नहीं है जो हमारी खबर मुसलमानों तक पहुंचाए। लिहाजा कुफ्फार ने अपनी फौज को समेटा, अपनी ताकतों को जम किया, और जमा करने के बाद दोबारा हमला किया। और हमला करने से पहले पहला काम ये किया कि चंद अफराद उस पहाड़ की चोटी पे गए, और जो बचा हुआ वो एक फर्द था जो पैगंबर की इत्तिबा में उस चोटी पर बैठा हुआ था कि जब तक पैगंबर हुक्म ना देंगे हम नीचे ना जाएंगे। ये कुफ्फार कुरैश आते हैं और आने के बाद सबसे पहले उसके सर को काटते हैं, उसके सर को कलम करते हैं, और अब दोबारा काफिर पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पे हमला करते हैं। और मुसलमान जो जंग जीत चुके थे वो हार में वो जंग तब्दील हो जाती है, शिकस्त खा जाते हैं। क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है मुसलमानों को? जनाब हमजा की शहादत होती है। क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है मुसलमानों को? पैगंबर का दंदान मुबारक शहीद होता है। क्या शिकस्त का नुकसान उठाना पड़ता है कि न जाने कितने सहाबी पैगंबर के जो सच्चे मुखलिस सहाबी थे वो इस जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं। और फिर मुसलमान जीती हुई जंग को हार चुके हैं। मुझे पूरी जंग नहीं पढ़नी है, मैं अब अजीज़ान गिरामी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे बताइए पैगंबर के पास कितना बड़ा मजमा था? 1000 अफराद का। कितने अफराद से कहा था पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाओ? 50 अफराद से। कितने अफराद बाकी रह गए पहाड़ पे और कितनों ने नाफरमानी कर दी? 49 अफराद पहाड़ से नीचे आ गए, वो एक फर्द पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है। आप परसेंटेज तो निकालिए। पैगंबर की जिंदगी में पैगंबर की सच्ची इताअत करने वाले, पैगंबर की सच्ची तबईयत करने वाले, पैगंबर की आंखों पे समअना व अताना पैगंबर के सामने कहने वाले, पैगंबर के हुक्म पे अपनी जान दे देने वाले की तादाद उन 50 में सिर्फ एक है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, फीसद निकालेंगे, तो गोया 2% सिर्फ ऐसे अफराद मौजूद थे पैगंबर की जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों में कि जो पैगंबर के सच्चे फॉलोअर थे और पैगंबर की बात की एतना करने वाले थे। वरना 98% अफराद वो हैं कि जो पैगंबर के हुक्म को भूल चुके हैं माल गनीमत के लिए, जो पैगंबर के हुक्म को ठोकर मार चुके हैं माल दुनिया और माल मताए दुनिया के लिए, और वो शहीद कर दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, अब मुझे बताइए कि अगर पैगंबर के ज़माने में पैगंबर की सच्ची बातों पे अमल करने वालों की तादाद 2% हो, तो फिर 50 बरस के बाद अगर पैगंबर के नवासे की तरफ सिर्फ 72 अफराद हों और दुश्मन की तरफ 90,000 का लश्कर हो, तो फिर ताज्जुब कैसा है? पैगंबर की जिंदगी में आप देखिए कि 98% पैगंबर की मुखालिफत करने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, पैगंबर के हुक्म की अदूली करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं और पैगंबर के हुक्म को नहीं मानते। 50 बरस के बाद भी यही होता है। वारिस रसालत, वारिस नबूवत, वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा, वारिस इब्राहीम और इस्माइल, वारिस मक्का और मिना, अब जब करबला की जानिब जा रहा है तो सारे मुसलमान उसका साथ छोड़ रहे हैं। और कौन जा रहा है? छोटे छोटे बच्चे हुसैन के साथ जा रहे हैं, घर के जवान हुसैन के साथ जा रहे हैं, घर की औरतें हुसैन के साथ जा रही हैं। और आज जब मुसलमान से करबला की बातें की जाती हैं तो वो ये कहता है कि साहब खता अगर हुसैन की ना होती तो फिर सहाबा ने साथ क्यों ना दिया हुसैन का। बड़ा किसी का अच्छा जुमला है कि किसी ने ये कहा कि जब सारे सहाबियों ने बैत कर ली थी यजीद की तो हुसैन को भी कर लेनी चाहिए थी, करबला बर्पा ना होती। जब सारे पैगंबर के चाहने वाले, उनका ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ने वाले, उनके सहाबियों को कोई एतराज नहीं था यजीद की हुकूमत से, तो हुसैन ने एतराज क्यों कर दिया? और फिर किसी ने जवाब दिया कि यही तो इस्लाम के ऊपर आई हुई आफत है कि जब हुसैन ने इनकार बैत कर दिया था तो फिर दूसरे सहाबियों की हिम्मत कैसे हुई कि वो यजीद की बैत करें। अगर हुसैन ने इनकार बैत कर दिया था, अगर हुसैन ने यजीद की हुकूमत को कबूल नहीं किया, तो फिर ये दूसरे सहाबियों को किसने हक दे दिया कि वो यजीद की हुकूमत के ऊपर साइन कर दें, यजीद की बैत कर लें, उसकी हुकूमत को मशरूइयत दे दें।
उसकी हुकूमत को सही जाने, उसकी हुकूमत को सही माने और करबला में हुसैन के खिलाफ आ जाएं। अजीज़ान गिरामी, मैंने बयान किया कि आदम से लेके पैगंबर आज़म तक हमेशा शजर खबीसा वालों की तादाद आपको ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कुरान करीम का हुक्म यही है, कुरान भी आपको यही कह रहा है, यही तो कहता है वलौ आजबक कसरतुल खबीस। मुमकिन है कि तुम्हें ये खबासत वालों की तादाद तुम्हें हैरत में डाल दे, ताज्जुब में डाल दे, मगर तुम कभी भी इनकी तादाद से मरऊब ना होना, इनकी तादाद से तुम घबराना नहीं, बल्कि तुम अपने पैरों के ऊपर खड़े रहना, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक शजरे तैयबा वालों से है कि जिसकी असल साबित होती है, जिनको ज़माना मुतज़लज़िल नहीं कर पाता, ज़माने की फ़िज़ाएं और हवाएं जिनके इरादों को और मुस्तहकम करती चली जाती हैं। और हम ये देखते हैं कि जो वाकई कलमे तैयबा की इत्तबा करने वाले होते हैं उनकी ज़बानें काट दी जाती हैं, मगर वो अपने रास्ते को नहीं बदलते। हमने ये देखा है कि जो वाकई कलमे तैयबा की इत्तबा करने वाले हैं उनको गधे की खाल में रख के जला के फूंक दिया जाता है, मगर वो अपने रास्ते को नहीं बदलते। हमने देखा है कि हुज्जाज के सामने 10-10 हज़ार अफराद को रोजाना कत्ल किया जाता है, मगर वो अपना रास्ता तब्दील नहीं करते। हमने देखा है कि अम्मार यासिर के वालिद हजरत यासिर और सुमैया को जुल्म बर्दाश्त करते करते दुनिया से जाना पड़ता है, मगर असलोहा साबित, उनकी असल चूंकि साबित है, लिहाजा उनके इरादे को कोई मुतज़ल्ज़िल नहीं कर सकता, उनके अज़्म और हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए कलमे तैयबा की जो इत्तिबा की है और जो समाज बनाने की कोशिश की है, जो अपने घर का माहौल बनाने की कोशिश की है, उसमें पैगंबर आज़म की दुआ भी साथ है, उसमें बीवी सैयद आलम की दुआ भी साथ है। लिहाजा आज 1400 बरस हो गए, जिनकी तादाद 90,000, 9 लाख या 90 लाख थी, आज उनका कोई तरफदार दिखाई नहीं देता, मगर जो करबला वाले थे, जो 72 थे, जिनकी तादाद बड़ी कम थी, आज उनका मातम पूरी दुनिया के हर गोशे गोशे में किया जा रहा है, उनकी सफ़े अज़ा बिछाई जा रही है। हालात के तहत वबा के आने की वजह से नामुमकिन हो गया मजालिस को करना, मगर जो हुसैन के शाहिदाई थे, जो हक़ की इत्तिबा करने वाले थे, जो कलमे तैयबा की पैरवी करने वाले थे, उन्होंने तरीक़ों को ईजाद किया और फातिमा को उनका लाल का पुरसा देने के लिए नए नए तरीक़ों के ज़रिए, कभी ऑनलाइन मजालिस करके और कभी दूसरे तरीक़ों से फातिमा से ये कहा कि बीबी, ज़माना कैसा भी आ जाए, मुश्किलात कितनी भी ही क्यों ना हो जाएं, बीमारियां जितनी भी आ जाएं, बलाएं कितनी भी आ जाएं और इंसान की साजिश चाहे किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, मगर जिनकी असल साबित होगी, जिनके पैरों में लग़ज़िश नहीं होती, जिनके ईमान मुतज़ल्ज़िल नहीं होते, वो क़यामत तक अल्लाह की वहदानियत का कलेमा भी पढ़ते रहेंगे, मोहम्मद की रसालत का कलेमा भी पढ़ते रहेंगे और तुम्हारे लाल का मातम भी करते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम देखते हैं कि यही एक वजह है कि यकीनन कलमे तैयबा वालों की तादाद भले कम हो, मगर ये जो माशरा बनाते हैं, ये जो समाज बनाते हैं, उसका असर ये होता है कि कभी कभी शजरे खबीसा के अफराद अपने यहाँ से निकलते हैं और शजरे तैयबा में दाखिल होने के लिए आ जाते हैं। आप जानते हैं कि रोज़े आशूरा और शबे आशूरा, हुसैन मजलूम करबला की मजलूमियत को देखकर 30 अफराद ऐसे हैं जो लश्कर यजीद को छोड़कर इमाम हुसैन की जानिब आ जाते हैं। हमने सिर्फ हजरत हुर को पढ़ा है और सुना है और देखा है, हजरत हुर एक अलामत बन गए हैं उन अफराद की कि जो शजरे खबीसा को छोड़कर शजरे तैयबा की तरफ आए। वरना रावी ये लिखते हैं कि 30 अफराद हैं कि जिन्होंने यजीद के लश्कर को छोड़ा और इमाम हुसैन की जानिब आए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वलो इनकी तरफ तादाद कम है, मगर यही तो है कलमे तैयबा, यही तो है शजरे तैयबा। लिहाजा एक नाम ज़ुहैर इब्न सलीम का है। 2 ज़ुहैर करबला में आपको नजर आएंगे, एक ज़ुहैर इब्न कैन है कि जिनके मसाइब आप सुनते रहते हैं, और दूसरे हैं ज़ुहैर इब्न सलीम। ज़ुहैर इब्न सलीम है उस्मानी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि करबला जो 60 हिजरी में हुई है, उस वक्त मुसलमानों ने अपने आप को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक सकीफ़ाई अकीदे वाले हैं और एक गदीरी अकीदे वाले हैं। गदीरी अकीदे वालों को अलवी कहा जाता है, और जिनका अकीदा सकीफ़ाई होता है कि जो सकीफ़ा को इदाम नबुव्वत समझते हैं, जो खिलाफत इजमा को, जो खलीफा बिला फसल हम मौलाए कायनात को समझते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि चूंकि पैगंबर ने अपना कोई खलीफा नहीं बनाया, लिहाजा मुसलमानों का इजमा जिस पर हो जाए वो पैगंबर का खलीफा होगा। वो सकीफ़ाई अपने आप को शान से उस्मानी कहा करते हैं। लिहाजा ज़ुहैर इब्न सलीम उस्मानी है कि जो सुबह आशूर, अब ये रवायात यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि आप हज़रत हुर से पहले इमाम हुसैन की जानिब आए या हज़रत हुर के बाद आए, मगर आए हैं और आने के बाद
इमाम से कहते हैं मौला पूरी जिंदगी उस माहौल में गुजरी है कि जो शैतानी माहौल था, पूरी जिंदगी मैंने बातिल की इत्तबा की है, अगर मेरी गलती मुआफ़ी के लायक हो तो मुझे मुआफ़ फरमाएं और मुझे कलमे तैयबा में दाखिल कर लें, मुझे शजरे तैयबा से मुल्हक कर दें कि मैं भी उनके समरात से मुस्तफ़ीज़ हो जाऊं। और इमाम ने इस्तकबाल किया, गले से लगाया। एक और नाम है अबू शासा। कौन है अबू शासा? यजीदी फौज का एक कमांडर जो हुर के साथ काम करता है और तीर अंदाज है, मगर रोज़े आशूरा हुसैन की मजलूमियत को देखा, कलमे तैयबा के जाज़बे ने इसको हुसैन की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। अबू शासा वो है कि जिसके लिए खुद इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने देखा कि 100 तीर अबू शासा की कमान में थे, अबू शासा के तरकश में थे, और 95 वो तीर थे कि जो हुसैन के दुश्मनों के ऊपर लगे, कि जिन तीरों ने हुसैन की हिफाजत की है, जिन तीरों ने हुसैन के महारिम की हिफाजत की है। लिहाजा जब हम तारीख़ करबला को उठा के देखते हैं तो 30 अफराद ऐसे मिलते हैं कि जो उधर से इधर आए हैं, मगर एक भी ऐसा नहीं मिलता जो हुसैन का साथ छोड़ के यजीद की जानिब बढ़ गया हो, जो यजीद की जानिब बढ़ा हो। हाँ, कुछ अफराद ऐसे ज़रूर हैं कि जिनको इमाम हुसैन ने खुद ये इजाज़त दी कि अगर तुम्हारी गर्दनों पे हुकूकुन नास बाकी हो तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, अगर किसी के सर पे कर्ज हो, कोई हक हो तो वो चला जाए, इसलिए कि अगर कोई कर्ज लेके शहीद भी हो गए तो ये शहादत तुम्हें फ़ायदा देने वाली नहीं है। या किसी को वारिस बनाओ, किसी को वसी बनाओ कि जो तुम्हारे हुकूक को अदा कर सके, और अगर तुम वारिस नहीं बना सकते, वसी नहीं बना सकते, तो मुझे छोड़ के चले जाओ। लिहाजा हुसैन को छोड़कर जाने वालों की तादाद कुछ मिलती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो हुसैन को छोड़ के यजीद की जानिब गया हो। लिहाजा ये हमको बताता है कि अगर हम माशरे को सजाना चाहें, अगर हम अपने समाज को इस्लामी बनाना चाहें, तो अगर माहौल वो पैदा कर दिया जाए और हमारी ज़ात खुद इस्लामी हो जाए, हमारा नफ्स खुद मुसलमान हो जाए, तो अफराद की तादाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बढ़ने लगती है। अजीज़ान गिरामी, यह अशरे मजालिस होता रहेगा, हम सैयदा को उनके लाल का पुरसा देते रहेंगे, आप रोज़ाना मजालिस करेंगे, और इस माहौल के अंदर आप सारी मजालिस ऑनलाइन कर रहे हैं, और मुस्तकिल एक स्क्रीन के सामने बैठना एक बड़ी जहमत का काम है। लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अजीज़ों, माह मुहर्रम आ गया है, ये वो मुहर्रम का चाँद है जिसके लिए मदीने वाले कहते थे कि मुहर्रम के चाँद को हम फलक पे नहीं देखा करते थे, हम आसमान पे नहीं देखते थे, हम जाफर सादिक के घर से उठती हुई रोने की सदाओं से समझ जाते थे कि माह मुहर्रम आ गया। इधर फलक पे माह मुहर्रम का चाँद नमूदार होता था, इमाम जाफर सादिक के घर में सफ़े अज़ा बिछ जाया करती थी। इमाम रज़ा गरीब का भी यही तरीक़ा था कि इधर माह मुहर्रम नमूदार होता था, चाँद फलक पे आता था, रज़ा गरीब के घर के पर्दे सियाह हो जाया करते थे। हुक्म देते थे कि आओ मेरे जद का पुरसा मुझे दो, इसलिए कि मेरा जद वो है जिससे रुला रुला के मारा गया, मेरा जद वो है कि जिसकी औलाद ने अगर उस पर आंसू बहाना चाहे तो जालिम ने तमाचे मारे हैं, कोड़े मारे हैं। आओ मुझे पुरसा दो मेरे जद का। सरकार सैयद शुहदा का पुरसा लेते इमाम रज़ा गरीब। इमाम हादी जब मरीज होते थे हुक्म देते थे कि किसी को पैसे दे दिए जाएं, वो करबला में जाए, हुसैन के ऊपर आंसू बहाए और मेरे हक में दुआ करे। अजीज़ान गिरामी, यकीनन हमारे तमाम आइम्मा बराबर है मर्तबे में, इनके मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं है। जो मर्तबा अली का है वो हसन का है, जो मर्तबा हसन का है वो हुसैन का है, जो मर्तबा हुसैन का है वो जाफ़र सादिक का है, जो मर्तबा जाफ़र सादिक का है वो इमाम आखिर का है। ये सारे मर्तबे में बराबर हैं, मगर हाँ, इमाम हुसैन की ये खासियत रही है कि हर इमाम ने हुसैन पे आंसू बहाया है। जब भी किसी को अपने ऊपर मुसीबत पड़ती हुई महसूस हुई तो सफ़े अज़ा बिछा के हुसैन का मातम किया है। आइम्मा ने हुक्म दिया तुम्हें अपने जवानों की याद आए जो दुनिया से चले गए हैं तो करबला के जवानों पे आंसू बहाना, तुम्हें अपने ज़ईफ़ों की याद आए तो हुसैन के ज़ईफ़ों पे आंसू बहाना, तुम्हें अपनी औरतों पे रोना आए तो हुसैन की औरतों पे आंसू बहाना। इसलिए कि हुसैन उस मजलूम इमाम का नाम है कि जिसके वरसा को उसके ऊपर आंसू बहाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि करबला से कूफा, कूफा से शाम की मंजिलें, अगर छोटे छोटे बच्चे अपने बाबा के कटे हुए सर को देख कर रोना भी चाहते थे तो जालिम तमाचे लगाया करता था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सवाए गम अहले बैत के। लीजिए अजीज़ों, पहली माह मुहर्रम तमाम हो रही है, माह मुहर्रम आ गया है, अशरे ऊला की मजालिस आप समात फरमा रहे हैं। दिल ये कहता है कि आज वो मसाइब पढ़ूं कि जहाँ से आगाज़ हो रहा है मसाइब का, कि जब ये हुक्म मिला है मदीने के गवर्नर को कि हुसैन को दरबार में बुलाओ और यजीद की बैयत लो, और अगर हुसैन बैयत न करें तो सरोतन में जुदाई कर दो।
रात की तारीकी में हुसैन मजलूम करबला हैं, दिल घबरा रहा है, लिहाजा आज नाना के मज़ार पे आए हैं, नाना की कब्र पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं। ए नाना आज दिल बड़ा मुनकलिब हो रहा है, ए नाना आज बड़ा दिल रंजीदा हो रहा है, आज मदीने में दिल नहीं लगता। ये कहते कहते सो जाते हैं। नाना की कब्र पे सर रख के सोए, अचानक कुछ ख्वाब में देखा कि घबरा के आंखों को खोला और किसी ने पूछा कि मौला क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कहा रे मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा है, बालों को बिखराए हुए आए थे। हुसैन अब तुझे मदीने को खैरबाद कहना होगा, मदीना ताराज होने वाला है, तुझे करबला की जानिब जाना होगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि कासिद ने आके बताया कि दरबार मदीना से हुक्म मिला है, हुसैन को याद किया गया है। हुसैन ने कहा कि रात की तारीकी में दरबारों में नहीं जाया करते, मैं कल सुबह आऊँगा। आने वाले ने कहा बस चंद दक़ाइक़ की मुलाकात है, आके वलीद से मुलाकात कर लो। हुसैन मज़लूम करबला नाना के मज़ार से उठे, अपने घर में पहुँचे। ए बहन ज़ैनब, मुझे दरबार में याद किया गया है, ए बहन ज़ैनब मुझे दरबार में बुलाया गया है। दरबार का नाम सुना ज़ैनब का दिल मुनक़लिब हो गया। ए मेरे भैया, मेरी माँ फातिमा भी दरबार में गई थी, मुसलमानों ने बैठने तक की इजाज़त न दी मेरी माँ को। इस रात की तारीकी में तुम्हें दरबार में बुलाने का सबब क्या है? ठहर जाओ, जब सुबह नमूदार हो जाए दरबार में जाना। हाँ मेरी बहन ज़ैनब, मैंने भी यही इरादा किया था कि रात की तारीकी में दरबार में न जाऊं, बस सुबह के उजाले में दरबार में जाऊं, मगर जालिम का हुक्म यह है कि मुझे वलीद ने याद किया है, जाना होगा। हुसैन जाने लगे तो एक मरतबा हुसैन अपने अब्बास को आवाज दी, मेरे भैया अब्बास, मेरा माजाया दरबार में जा रहा है, अल्लाह जाने वलीद ने कौन सी साजिश की है, शाम की तरफ से कौन सा फरमान आया है। मुझे खतरा मालूम होता है कि जो मुसलमान हसन के जनाजे पे तीर चला सकते हैं, वो मेरे हुसैन को बुला के दरबार में क्या करने वाले होंगे। जाओ अब्बास, हुसैन के साथ जाओ। अकबर जाओ, अपने बाबा का ख्याल करो। लीजिए अब्बास और अकबर उठे, कासिम ने अपनी तलवार को संभाला और मोहम्मद ने अपनी तरकश को उठाया। 18 बनी हाशिम है, हुसैन मजलूम करबला को अपने साये में लेके जा रहे हैं, जैसे एक गुलदस्ते के अंदर फूल हो कि जो जा रहा है दरबार खिलाफत की तरफ। रावी कहता है हमने देखा कि जब हुसैन दरबार के दरवाजे पे पहुंचे, बनी हाशिम को रोक दिया है, बनी हाशिम यही ठहर जाओ, मुझे तन्हा दरबार में बुलाया गया है, मैं तन्हाई दरबार में जाऊंगा। हजरत अब्बास ने हाथों को जोड़ा, मौला आप तन्हा जाएंगे, अगर जालिम ने गुस्ताखी की तो क्या होगा? ए अब्बास, अगर जालिम ने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मेरी आवाज बुलंद होगी, मेरी आवाज बुलंद होते ही तुम दरबार में दाखिल हो जाना। लीजिए अजीजो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हुए हुसैन मजलूम करबला दरबार खिलाफत में वारिद हो रहे हैं। देखा जालिम अपने दरबार में कुर्सी पे बैठा हुआ है, पास में मरवान बैठा हुआ है, और आने जैसे ही इमाम हुसैन मजलूम करबला दरबार में वारिद हुए, वलीद ने सलाम किया हुसैन को, हुसैन ने सलाम का जवाब दिया। वलीद कहता है कि शाम से खबर आई है, अमीर शाम ने दुनिया को खैरबाद कहा। हुसैन मजलूम करबला का ने सीगे इस्तरजा जारी किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ पलट के जाना है। मुझको क्यों रात की तारीकी में याद किया है? यजीद तुमसे बैयत लेना चाहता है, यजीद ये चाहता है कि मदीने में हुसैन यजीद की बैयत कर लें। हुसैन मजलूम करबला ने बैयत का नाम सुना, कहा वलीद तुझे शर्म नहीं आती? बैयत जैसा बड़ा फैसला रात की तारीकी में हुसैन अकेला यक्को तनहा कर ले, तुझे ऐसा लगता है कि हुसैन इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कर लेगा? और अगर बात बैयत की है तो यजीद से ज्यादा मैं सजावार हूं कि मुसलमान मेरे हाथ पे बैयत करें। यजीद एक शराबखोर इंसान का नाम है, यजीद एक जुआरी इंसान का नाम है कि जिसके निगाहों में हुदूद खुदा की कोई अहमियत नहीं होती, जो हुकूक खुदा को पामाल करता है, जो हुदूद खुदा को मुनहदिम करता है, मेरे जैसा उसकी बैयत कर ले। मिसली ला युबायु मिसला, मेरे जैसा उसकी बैयत नहीं कर सकता। हाँ अगर फिर भी तू ये चाहता है कि मैं गौर खोस करूं तो आज रात की मोहलत दे, कल दिन में मैं आऊंगा दरबार में, मुसलमानों के साथ आऊंगा, फिर फैसला होगा कि बैयत यजीद की होनी चाहिए या हुसैन की होनी चाहिए। बैयत के लिए यजीद ज्यादा मोतबर है या हुसैन का एतबार ज्यादा है? ये कह के हुसैन मजलूम करबला दरबार से वापस जाने लगे। अभी हुसैन को जाना ही था कि एक मरतबा मरवान कहता है वलीद, अगर हुसैन रात की तारीकी में तेरे दरबार से निकल गए तो दोबारा तेरे हाथ आने वाले नहीं हैं, या तो हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दे या बैयत ले ले। बाजीदान गिरामी, हुसैन मजलूम करबला ने इतना सुना, एक मरतबा कहा यब्न ज़रक़ा, तू हुसैन को मौत से डराता है,
तुझे मालूम है कि मेरा बाबा वो है कि जो मौत से इतना मानूस था जैसे ऊंट का बच्चा अपनी माँ के पिस्तान से मानूस होता है, तू हमें मौत से डराता है। अभी आवाज का सरकार की बुलंद होना ही था कि दरबार में हजरत अब्बास दाखिल हुए हैं तलवार को लेकर, हजरत अली अकबर दरबार में दाखिल हो चुके हैं और मोहम्मद दरबार में दाखिल हो गए हैं, तलवार को बेमियान किए हुए हैं मौला अबुल फजल अब्बास। मौला इजाजत दीजिए मरवान के सर तन में जुदाई कर दे, मौला इजाजत दीजिए कि अभी इस दरबार को खून में रंगीन कर दे। हुसैन ने कहा अब्बास सब्र करो, अब्बास सब्र करो, ये मदीना है, अभी करबला की इब्तिदा नहीं हुई है, अभी सब्र करो। ये कहने के बाद अब्बास ने तलवार को मियान में रखा, अकबर ने तलवार को मियान में रखा। हुसैन मजलूम करबला बनी हाशिम के साए में घर की तरफ वापस आ रहे हैं। अब जैनब है, जब तक हुसैन दरबार के अंदर मौजूद थे जैनब को चैन कहाँ। जैनब बेकल परेशान खड़ी हुई है दरवाजे पे कि कब मेरा माजाया आए, मैं देखूं बाखैरियत तो आफियत घर वापस आ गया है। हुसैन बस करबला को देखा, चेहरे पे कुछ बेचैनी के इजहार हैं, बेचैनी के असरात हैं। मेरे भैया दरबार में ऐसा क्या हुआ कि आप बेचैन हैं? बहन जैनब अब मदीना रहने के लायक न रहा, अब मदीने को छोड़ना होगा, वादे तिफली को अदा करने का मौका आ गया। जैनब आमादा हो जाओ, अब हमको मदीने से जाना होगा। लीजिए रात की तारीकी में बनी हाशिम अपने असास को जमा कर रहे हैं, काफिला आमादा हो रहा है। बस मैंने तमाम किया मजलिस को, काफिला आमादा हो चुका है, सब करबला की जानिब जा रहे हैं, मगर हुसैन की एक बच्ची है जिसका नाम सुगरा है, सुगरा अलील है, मरीज है। हुसैन इजाजत नहीं देते कि सुगरा मदीने को छोड़े, करबला में जाए कि करबला से कूफा और कूफा से शाम की मुसीबतों को बर्दाश्त करे। सुगरा तुमको इजाजत नहीं है। लीजिए काफिला आमादा हो गया, सुगरा आखिरी मर्तबा हुसैन से मुलाकात को आई है। ए मेरे बाबा, अगर सब करबला जा रहे हैं, सुगरा अकेली कैसे रहेगी इस घर के अंदर? हाँ, मेरा जो छोटा सा भाई अभी अभी दुनिया में आया है, कम से कम मेरे दिल बहलाने के लिए उसको मेरे हवाले कर दो। भाई इतना सुनना था हुसैन मजलूम करबला ने शशमाहे को सुगरा के हवाले किया। सुगरा ने असगर के चेहरे को देखा, मेरे भैया सब सुगरा को छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम भी चले जाओगे? भाई इतना सुनना था, असगर ने सुगरा के गले में बाहें डाल दी। ए मेरी बहना, मेरा दिल ये कहता है कहा होगा मेरी बहना सब छोड़ के चले जाएं, ये असगर सुगरा के नजदीक रहेगा। काफिला आमादा, ए मेरी बच्ची असगर को हवाले करो कि काफिला आमादा हो चुका है। ए बाबा, अगर ये असगर अपनी मर्जी से जाना चाहे तो सुगरा ना रोकेगी। भाई इतना सुनना था, हुसैन मजलूम करबला घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। एक मरतबा असगर को आगोश में लेना चाहा, देखा असगर करीब नहीं आते, कानों में कुछ सरगोशियां की। मैं कहूंगा मौला ऐसा क्या कह रहे हैं आप? ये अभी चंद दिन का मौलूद है जो दुनिया में आया है, इसको क्या हुक्म दे रहे हैं? मेरा दिल ये कहता है कि हुसैन ने कहा होगा, ए मेरे असगर, ए मेरे शशमे, मेरे बच्चे, ए मेरे नौमौलूद बच्चे, अगर तुम करबला में ना गए तो जालिम की फौज को कौन मजबूर करेगा जो मुंह फैरा के रोएंगी? ए मेरे असगर, अगर तू करबला ना गया तो शोहदाए करबला की फहरिस्त अधूरी रह जाएगी। तुम्हें भी जाना है, तुम हुज्जते खुदा के पोते हो, तुम्हें भी हुज्जतें तमाम करनी होगी। लीजिए हुसैन मजलूम करबला ने असगर से जो सरगोशियां की, सुगरा की गले को छोड़ा, बाहों को हुसैन के गले में डाल दिया, और अब हुसैन मजलूम करबला बच्चे को आगोश में लेके अब निकल रहे हैं करबला की जानिब। सुगरा ने दोबारा हाथों को जोड़ा, मौला जाते हो तो खुदा हाफिज, मगर वादा करो करबला पहुंच के अकबर को भेजोगे, सुगरा को करबला में बुलवाओगे। लीजिए वादा हुआ, काफिला आमादा हो गया है। वो दिन और उस दिन से लेकर सुगरा की जिंदगी का आखिरी दिन इंतजार कर रही है, मेरा अकबर आएगा, मैं करबला में जाऊंगी। मगर वो वक्त नसीब न हुआ कि सुगरा करबला में पहुंचती। हाँ, सुगरा तक ये खबर पहुंच गई, ए सुगरा तेरा बाबा मारा गया, तेरा असगर, तेरा शशमाहा तीर से शोभा का शिकार हुआ, अकबर के सीने पे बरछी मारी गई। सुगरा वाह हुसैना की सदाएं बुलंद करती है, ए मेरे बाबा वादा पूरा न हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही तयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह मौलाना, जज़ाकल्लाह। अब मेरी गुजारिश जनाब दिलशाद रिजवी साहब से है कि वो नौहे ख़ानी करें। जनाब दिलशाद रिजवी साहब।
یا حسین یا حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا حسین پرتا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، سب چاک کرے باہوں ماتم بھی کیا جائے، پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، یہ حکم تھا حاکم کا سیراب ہو سب لیکن، یہ حکم تھا حاکم کا سیراب ہو سب لیکن، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے، پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، باندھا ہے علم میں یوں مشکیزہ سکینہ نے، عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے، پرسا شہ والا کا صحرا کو دیا جائے، اکبر ہمیں تم لینے کب خیر سے آؤ گے، پیغام یہ صغرا کا اب کس کو دیا جائے، پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے، بھیا تیری میت پر آئے گی بہن رن میں، بھیا تیری میت پر آئے گی بہن رن میں، زینب نے کہا سر سے جاتی ہے ردا جائے، پرسا شہ والا کا صحرا کو دیا جائے، غربت میں یتیمی کی فریاد کرے کسے، دربال سکینہ کا جب چھین لیا جائے، پرسا شہ والا کا صحرا کو دیا جائے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین، جزاک اللہ۔ اب میری گزارش جناب انیل جعفری صاحب سے کہ وہ نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب انیل جعفری صاحب۔ میں ایک پرانا نوحہ ابو القاسم پیکر بھائی مرحوم کا پڑھوں گا، اور اس کی طرز جو ہے وہ باقر بھائی، شمبھو بھائی اور عباد بھائی نے بنائی تھی۔ جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہا تر تشنہ دہن
جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن پیاس ان کی بہت یاد آتی ہے پیاس ان کی بہت یاد آتی ہے جب جوش میں ہوتا ہے ساون جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن تھی کرب و بلا کی صف بندی یوں مار گئے کفر و دی میں تھی کرب و بلا کی صف بندی یوں مار گئے کفر و دی میں ایک سمت ہزاروں نیزہ فگن ایک سمت ہزاروں نیزہ فگن ایک سمت بہاتر تشنہ دہن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن کیوں اور کسی سے پوچھے کوئی کیا شے ہے علامت جینے کی کیوں اور کسی سے پوچھے کوئی کیا شے ہے علامت جینے کی تکبیر نشان ہستی ہے تکبیر نشان ہستی ہے سمجھا کے گئے ہیں شاہ زمن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن سر سجدہ خالق بے کٹ کر گودینت نیزہ بن بھی گیا سر سجدہ خالق میں کٹ کر گودینت نیزہ بن بھی گیا دہلیز پہ کفر و بدعت کی دہلیز پہ کفر و بدعت کی لیکن نہ جھکی شہ کی گردن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن عباس نشان کٹوائے اصغر کی لحد کھودی شے نے عباس نشان کٹوائے اصغر کی لحد کھودی شے نے ہمشیرہ آخر کس کی تھی ہمشیرہ آخر کس کی تھی زینب کے بندھی بازو میں رسن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن کوفے کے اگر بازاروں میں بے مقنع چادر زینب تھی کوفے کے اگر بازاروں میں بے مقنع چادر زینب تھی مظلوم برادر کی میت مظلوم برادر کی میت مقتل میں رہی بے گور و کفن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن وہ صبر وفا کا عاشق تھا کس طرح نہ پے کر آ جاتا وہ صبر و وفا کا عاشق تھا کس طرح نہ پے کر آ جاتا سر تخت سے اٹھ کر گودی میں سر تخت سے اٹھ کر گودی میں پھیلائے سکینہ جب دامن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن جھلسا ہوا بن تپتا صحرا اور اس میں بہاتر تشنہ دہن
प्यास उनकी बहुत याद आती है, प्यास उनकी बहुत याद आती है, जब जोश में होता है सावन, झुलसा हुआ बन तपता सहरा और उसमें बहाकर तशना दहन, झुलसा हुआ बन तपता सहरा और उसमें बहातर तशना दहन। हुसैन हुसैन हुसैन, बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह। अब मेरी गुजारिश ज़िया ज़ैदी साहब से है कि वो ज़ियारत पढ़ा दें। जनाब ज़िया ज़ैदी साहब। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक।